اردو بھی نیو لیکچر کے ساتھ آپ کا یہ پہلا لیکچر سامنے ہے. یہ اگست کا لیکچر ہے اور آپ کو مینشن بھی کیا گیا ہے کہ 32 پیج پہ ہے. یہ آپ کے اردو بی کی ورک بک اردو قواعد و نشات جسے کہہ سکتے ہیں آپ، قواعد و نشات بھی کہہ سکتے ہیں، پیج 32 ہے. یہاں پر آپ کو جملوں کی درستی کے بارے میں گائیڈ کیا جا رہا ہے. اردو لینگویج میں یعنی اردو زبان میں تھوڑی سی غلطی سے بات جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے اور جو بھی سنے گا وہ کہے گا بھئی ان کو تو اردو زبان نہیں آتی. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس سے ہماری علمیت کا جو ہلکا پن ہے یا کم علمی ظاہر ہو جاتی ہے. اگر ہم نے وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں دور نہ کی تو ہم تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ نہیں کہلا سکیں گے. وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے ہیڈنگ ہے جملوں کی درستی کی. ایک کالم میں آپ کو غلط جملے لکھے نظر آ رہے ہیں اور اس کے آگے دوسری سائڈ پر آپ کو درست جملوں کی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے. اکثر ہم یہ جملہ بولتے ہیں برائے مہربانی میرا کام کر دے. برائے کا لفظ میں آپ کو زوم کر دیتی ہوں. برائے کہتے ہیں کے لیے، مہربانی کے لیے، یعنی یہ مہربانی جو ہے شو کر رہا ہے کہ یہ کوئی فائل ہے جس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. یہ لفظ غلط ہے. براہ مہربانی یعنی مہربانی کرتے ہوئے، براہ مہربانی تو صحیح جملہ ہو گیا. براہ مہربانی میرا کام کر دیجئے. اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں کہ اس میں صرف ہے کا جو ہے غلطی ہے، باقی سارا جملہ سیم ہے، ذرا سا بھی فرق نہیں ہے. بے رے الف ادھر بھی ہے، بے رے الف ادھر بھی ہے، ادھر حمزہ اور بڑی یہ ہے اور ادھر صرف ہے گول والی. بس آپ یہ یاد رکھے گا کہ جس میں ہے کا لفظ آئے گا وہ جملہ درست ہے، یعنی براہ مہربانی. بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسی غلط جملے ہی کو لے کر درخواست لکھتے ہیں اور غلطی کر بیٹھتے ہیں. اگلے جملے پہ لکھا ہوا ہے قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے، اور بہت سارے بچے قائد اعظم کو آئین سے لکھتے ہیں جو کہ غلط ہے، اور کچھ بچے الف لگا کر آئین سکپ کر دیتے ہیں جیسے آپ کے سامنے ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں یہاں پر آئین لگ گیا اب اعظم کے ساتھ آئین لگنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا یہ قائد اعظم غلط لکھا ہوا ہے. آپ کے سامنے یہ دیکھیے کاف الف کا تو ٹھیک ہے لیکن آگے حمزہ دال پھر الف اور پھر آئین ہے. کاف الف اور حمزہ پھر دال، ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. جو غلط درست جملے ہیں ان کو بک پہ ایسے ہی لکھتے جائیے. امید ہے کہ آپ بخیریت سے ہوں گے. یہ بھی ایسی غلطی ہے جو معلوم تو نہیں ہوتی، چھوٹی سی غلطی ہے. بخیریت سے ہوں گے غلط ہے، باخیریت ہوں گے یا خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے. میں نے لاہور جانا ہے یہ بھی غلطی ہے، مجھے لاہور جانا ہے. سنگ مرمر کا پتھر خوبصورت ہے، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور 2 بار یہ لفظ لکھا جا رہا ہے سنگ مرمر، مرمر کے ساتھ سنگ کا لفظ اور پتھر کا، تو یہ غلطی ہے. ہم دونوں میں سے ایک لکھیں گے، سنگ مرمر خوبصورت ہے یا مرمر کا پتھر خوبصورت ہے. تو مرمر کا پتھر تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے، تو لہٰذا ایک ہی جملہ یاد کیجئے سنگ مرمر خوبصورت ہے. قلم اور کاغذ اور دوات لاؤ، قلم دوات اور کاغذ لاؤ. 2 بار اور غلطی ہے، 1 بار اور ٹھیک ہے.
मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब हम 2 या 3 इसम लेकर आते हैं तो उनमें अलामते वक्त डाला जाता है कोमा। ये आपके सामने कलम के आगे छोटा सा कोमा नजर आ रहा है। 3 इसम इधर हैं और 3 ही इसम इधर हैं। कलम और कागज और दवात लाओ तो और का लफ्ज डबल नहीं आएगा, और का लफ्ज एक ही दफा आएगा। उस और के लफ्ज के साथ हम कोमा लगाएंगे और की जगह पे। आज योम पाकिस्तान का दिन है, आज योम पाकिस्तान है। योम का मतलब दिन, और जिस तरह हमने जुमला नंबर 25 पे देखा था पत्थर 2 दफा आ गया, संग के साथ, संग का मतलब भी पत्थर है और पत्थर तो है ही पत्थर, सो दैट हमने ये सिर्फ एक ही बार लिखना है, 2 दफा नहीं लिखना। जैसे कि हम शब और रात दोनों का मतलब एक है, यानी रात। आब और पानी दोनों एक जुमले में नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा। अब्बू जान और वालिदे मोहतरम ये दोनों लफ्ज सही नहीं है, एक ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह योम या दिन दोनों में से एक लफ्ज आएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आज पाकिस्तान का दिन है, तो बात ठीक है, लेकिन ग्रामर में बेहतरीन जो है वो है आज योम पाकिस्तान है, का दिन गलती है। आपको गलतियां दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा कलर यूज कर लिया है। अगला जुमला देखिए, आप कहाँ जाओगे। अक्सर बच्चे बात करते हैं, है तो ये तमीज वाली बात, लेकिन आपके साथ हम वाहिद जाओ नहीं लिखेंगे, हम जमा लेकर आएंगे, यानी आप कहाँ जाएंगे। आप कब आओगे गलत है, आप कब आएंगे। आप कब खाओगे गलत है, आप कब खाएंगे। आप कब लिखोगे ये भी गलत है, आप कब लिखेंगे। तो बेटा ये रोजमर्रा की गलतियां हैं जो अक्सर हम लैंग्वेज में कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस तरह की गलतियां ये कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने मुहावरात के सारे नोट कर लिए होंगे और कुछ बच्चों ने इनके मायने अभी नोट नहीं किए हुए। बेटा मैं आपके सामने मुहावरात का पेज रखा हुआ है, आप इसको गौर से देखिए। एक से लेकर 9 तक आप पढ़ चुके थे और बच्चों ने कहा था कि हमें इनके मायने दोबारा चाहिए। ये आपके सामने है। आसान खता होना, होश ना रहना, इत्मीनान का सांस लेना, तसल्ली होना। जिन बच्चों ने नहीं लिखा हुआ वो अभी इस पेज को मैं और जूम कर देती हूँ। ये देखिए, आसान खता होना, होश ना रहना, इत्मीनान का सांस लेना, तसल्ली होना, बाग बाग होना, बहुत खुश होना, बाल बाल बचना, बड़ी मुश्किल से बचना या बहुत मुश्किल से बचना, पानी फेर देना, जाया कर देना, फूला ना समाना, बहुत ज्यादा खुश होना, जान पर खेलना, जान कुर्बान करना, जान जोखों का काम, बहुत मुश्किल काम, जी चुराना, काम से बचना, चर्चा होना, शोहरत होना, काम तमाम कर देना, खात्मा होना। आप बेटा मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ कि आप इसको लिख लें। जिन बच्चों के ये मायने रहते हैं उनको मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ कि वो इसको लिख सकें। आपको मैंने समझाया था कि मुहावरात के हमेशा 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन यानी पहले हम मुहावरात को पढ़ेंगे, फिर उनका हम मतलब बताएंगे, मतलब पढ़ेंगे। ये दोनों सवालात इकट्ठे नहीं आते, या मायने आएंगे या जुमले आएंगे। आपने पहले मुहावरात के मायने याद करने हैं। वो इसलिए जरूरी है कि कुछ बच्चे इतने बरेनी होते हैं कि वो अपना क्रिएटिव वर्क जो है वो लाकर बड़े खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि वो क्रिएटिविटी करें। तो मतलब समझने से वो खुद से जुमले बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। कुछ बच्चों को आसानी से याद हो जाता है, वो आसानी से याद कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है उसी जुमले को याद कर लिया और अच्छे अच्छे नंबर ले लिए। ठीक है, तो मुहावरात के मायने याद करना बहुत जरूरी है, कभी कभी ये भी पेपर्स में आ जाते हैं।
इसके अलावा मुहावरात के एमसीक्यूज भी बन जाते हैं कि मुहावरा सही लिखा हुआ है या नहीं सही लिखा हुआ। इसी तरह हम इसकी ब्लैंक्स बना देते हैं कि बच्चों को मुहावरा याद हो गया है कि नहीं, जस्ट लाइक बाल बाल बचना, और बाल या बाल डैश बना दिया और बचना हमने लिख दिया। तो आपने ये एक मुहावरा के जैसे उसान खता होना है, उसके आगे लिखा हुआ होश ना रहना, तो आगे उसका जुमला है सांप देखकर लोगों के उसान खता हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पोर्शन आई थिंक कि आपको दोबारा से इसकी मैंने जो रिवीजन करवाई है अब आपको सही से याद हो गई होगी। कुछ बच्चे कह रहे थे हमें मुहावरा जो हैं वो बिल्कुल भी याद नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी एक दिखा देती हूँ। मुकम्मल मुहावरे आपके मुतरादिफ अल्फाज आपके सामने हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ऐसे अल्फाज जो पढ़ने लिखने में तो अलग हो मगर इनके मायने एक हो। पढ़ने और लिखने में वो अल्फाज अलग हों, जैसे आब और पानी लिखने में भी अलग है, बोलने में भी अलग है, लेकिन मतलब इनका एक है। यानी पानी ऐसी चीज जो पी जाती है और उस कलर भी उसका नहीं होता और वो सादा सा होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं है। आपकी फरमाइश पर मैं आपको ये पेज दोबारा पढ़ा रही हूँ। सब बच्चे मेरे पीछे पीछे आवाज लगाएंगे और बोलेंगे, ठीक है। आब, अलिफ मदाब बे साकिन, आब मतरादिफ क्या है, पानी। फलक, काइंडली स्टूडेंट्स टाइमली क्लास में एंटर हुआ करें। फलक आसमान, बर्स साल, बहिश्त जन्नत, पतला दुबला उजाला रोशनी, अहद वादा पुख्ता पक्का, तर गीला तवक्को उम्मीद चिराग दिया, जुदा अलग, फतह जीत, वालिद बाप, हया शर्म, बद बुरा शय चीज, अलम झंडा, खूब अच्छा, जिद्दोजहद कोशिश, रिवाज रस्म, फरेब धोखा, आफत मुसीबत, आफताब सूरज, रुखसत छुट्टी, लागर कमजोर, दर्द तकलीफ, वालदा माँ, हवस लालच, दुश्वार मुश्किल, खुशी मुसरत, ताजुब हैरत, तपिश हरारत, सर्द ठंडा, दरख्त शजर, खौफ डर, समर फल। नजदीक करीब, शाख टहनी, सबब वजह, लाइक काबिल, शुबा शक। तो बेटा ये थे आपके पिछली रिवीजन, जो कि अक्सर बच्चे कह रहे थे कि उनको इनकी दोबारा से रिवीजन करवाई जाए। उम्मीद है कि आपको इसकी सबकी समझ आ गई होगी, मुतरादिफ की भी मुहावरात की भी। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा कहानी के बारे में समझा देती हूँ, जो बच्चों को उस लेक्चर की समझ नहीं आई थी।
اوکے اسٹوڈینٹس، آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہانی جو کہ کافی سارے بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں دوبارہ سے کروائی جائے. جی اسٹوڈینٹس، تھوڑا سا آپ کو یہ